Hello everybody, welcome to my channel Jithaku's Chemistry. So today we will discuss about the crystal lattice and unit cell. Crystal lattice is also known as space lattice. Okay. So firstly, what is the crystal lattice? Crystal lattice is the regular arrangement of the constituent particles of a crystalline solid in 3D space. ओके जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के उनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है इन 3D स्पेस. ओके यू कैन सी दिस इज ए 3D क्रिस्टल लैटिस. ओके these are the constituent particles that are marked by the dot. Okay, now what is the unit cell? This is the unit cell that I marked with the red pen. Okay, this is the smallest repeating unit in the space lattice which when repeats over and over produce the complete crystal lattice. Okay, जो यूनिट सेल होता है वो एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉल पोर्शन होता है. अगर इस पोर्शन को हम रिपीटेडली कंबाइन करें तो फुल क्रिस्टल लैटिस ऑब्टेन हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस. What are the parameters of the unit cell? This is the unit cell and here A is the distance along this direction and B is the distance along horizontal direction and C is the direction along the vertical direction. Okay, so these A, B and C are the axial distance. Okay, now the angle between A and B is gamma, B and C is alpha and C and A is beta. So these are the three angles, alpha, beta and gamma. So these are the 6 parameters of the unit cell. Okay, अगर हम इसे याद करना चाहते हैं कि कौन सा एंगल किस एक्सियल डिस्टेंस और किस एक्सिस के बीच है तो हम इसे ऐसे देख लेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा इज़ सेम एज ए बी सी. अगर हम ए और बी एक्सिस लेंगे तो उनमें सी मिसिंग है, मीन उनका एंगल. बी और सी में ए मिसिंग है तो उसका एंगल अल्फ़ा होगा. ओके, एंड सी एंड ए में बी मिसिंग है सो इसका एंगल बीटा होगा. सो इसे हम याद कर सकते हैं व्हाट आर द एंगल बिटवीन द these two axes. Okay, now next is types of unit cells. There are basically 2 types of unit cell. First one is primitive unit cell, second is centered unit cell. Okay, primitive unit cell is simple cubic cell. In primitive unit cell the points are present only at the corners like this. Here the points are present only at the corners. Second is center unit cell. This is further classified into 3 unit cells. Firstly is face centered cubic unit cell. In FCC, here the points are present at the corners as well as the faces. Here in the cube there are how many faces? Count करो. 1 2 3 4 and first आगे की face होगा 6. So in a cube there are 6 faces. So in FCC 8 points are present at the corners and 6 points are present at the faces. Okay, now next one is body center. In body center points are present at the corners as well as the body center of the unit cell, means here one atom is present. Next is end center unit cell. In end center unit cell the points are present at the corners and the center of 2 opposite faces. Okay, here if all the points are present at the corners and opposite faces. If there is an atom present उसकी opposite side में atom present होगा. ऐसे इनमें 2 opposite faces पे atoms present होंगे. Okay, next are the types of crystal system.
देयर आर बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो इन्हें हम याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे। हम इस लाइन को याद करेंगे इससे इन सब क्रिस्टल सिस्टम को याद करने के लिए। ओके, सो दिस क्यूट और मोहिनी रिया थी। ओके, इस क्यूट में सी यू से आ गया हमारे पास क्यूबिक, टी ई से आ गया टेट्रागोनल, और से आ गया हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, एम ओ मोहिनी से एम ओ से आ गया मोनोक्लिनिक, एच ई से आ गया हेक्सागोनल, एन को हम स्किप कर देंगे यहाँ पे, एंड रिया की आर से आ गया हमारे पास रोम्बोहेड्रल। इसमें से हम सिर्फ आर लेंगे, बाकी का स्किप कर देंगे। थी से हम टी लेंगे, टी से आगे ट्राइक्लिनिक, एंड आर आई को हम स्किप कर देंगे। ओके, सो इस रिदम को हम याद करके इन सभी क्रिस्टल सिस्टम को याद रख सकते हैं। ओके, सो दीज क्रिस्टल सिस्टम आर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। अगर हम इस लाइन से याद कर रहे हैं, इस रिदम से इनको, तो हमें एज इट इज़ याद करना होगा और एज इट इज़ लिखना होगा, अदरवाइज़ इन सभी ऑर्डर्स में गड़बड़ हो सकती है। तो इसे एज इट इज़ याद कर लेना। नेक्स्ट इज़ व्हाट अबाउट द एक्सियल डिस्टेंसेस। एक्सियल डिस्टेंसेस आर ए बी एंड सी। ओके, सो इन क्यूबिक में ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, टेट्रागोनल में ए इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, ऑर्थोरोम्बिक में ये तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं होंगे, मोनोक्लिनिक में भी सेम आएगा, हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी तो होगा बट नॉट इक्वल्स टू सी होगा, रोम्बोहेड्रल में तीनों इक्वल होंगे और ट्राइक्लिनिक में सभी अनइक्वल होंगे। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल लैटिस एंड दिस इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल लैटिस। ओके, इसे याद करने के लिए हम देखेंगे, फर्स्ट में सभी इक्वल है, सेकंड में एक अनइक्वल है, थर्ड में दोनों, फोर्थ इसके सेम है। अब यहाँ हम 3 याद कर लेंगे, इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। फर्स्ट में सभी इक्वल, इसमें वन अनइक्वल, इसमें तीनों अनइक्वल हैं। नेक्स्ट वाला इससे सेम हो गया, ये वाला इससे सेम हो गया, और जो लास्ट वाला है ट्राइक्लिनिक, इसमें सभी अनइक्वल होंगे। ओके, सो इस सीरीज़ में हम इन्हें याद कर लेंगे। नेक्स्ट इज एक्सियल एंगल्स दैट आर अल्फा। एंगल्स याद करना ईजी है। फर्स्ट में अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गैमा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, सेकंड में भी सेम होगा, थर्ड में भी तीनों एंगल्स इक्वल टू 90 होंगे, फोर्थ में मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल टू 90 तो होगा, पर जो गामा वाला एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। और हेक्सागोनल में हमें पता है अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल 90 के होंगे और एक एंगल क्या होगा, गामा वाला 120 डिग्री का होगा। ओके, रोम्बोहेड्रल में हमारे पास एंगल्स तो इक्वल होंगे बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होंगे, एंड ट्राइक्लिनिक में एंगल इक्वल नहीं होंगे, आपस में भी इक्वल नहीं होंगे और 90 के इक्वल भी नहीं होंगे। इन दोनों में यही डिफरेंस है। ऊपर वाले में रोम्बोहेड्रल में सभी एंगल इक्वल तो हैं पर 90 के, और ट्राइक्लिनिक में सभी एंगल्स भी इक्वल नहीं है और 90 के इक्वल भी नहीं है। ओके, होगा। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज क्रिस्टल सिस्टम्स, और इन एग्जांपल्स को हमें एज इट इज़ याद करना होगा। हमारे पास क्यूबिक की एग्जांपल है NaCl, KCl, कॉपर एंड सिल्वर। टेट्रागोनल की है वाइट टिन, TiO2 एंड SnO2। ओके, ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास है रोम्बिक सल्फर, इसमें आप रोम्बिक सल्फर याद कर लेना। बेरियम सल्फेट, अगर ये दोनों याद हो रहे हैं तो करो, नहीं तो एक याद कर लो। मोनोक्लिनिक में हमारे पास है मोनोक्लिनिक सल्फर। हेक्सागोनल में ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। ओके, रोम्बोहेड्रल में कैल्साइट, क्वार्ट्ज। ओके, ट्राइक्लिनिक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल लैटिस, एंड एग्जांपल्स आर पोटाशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, एंड ये याद कर लेना कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ओके, दिस इज बोरिक एसिड, हम ऐसे याद कर लेंगे। ओके, ये मैंने क्रिस्टल सिस्टम बनाए हैं
ये सिंपल क्यूबिक, इनमें सभी कॉर्नर में एटम प्रेजेंट है। दिस इज़ बॉडी सेंटर, इनमें सभी कॉर्नर और बॉडी के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है। दिस इज़ फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर में क्या होगा, सभी कॉर्नर और सभी फेसेस पे एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट मूव ऑन द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, तो हमारे पास अगर मैं इसे आप इस क्रिस्टल लैटिस से समझाऊंगी कि कैसे हमने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालने हैं। अब सिंपली ये देख लो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम टू द यूनिट सेल एट द कॉर्नर इज इक्वल टू 1/8, एट फेस इक्वल टू 1/2 एंड विद इन द बॉडी इज़ 1। तो ये कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे पास कंप्लीट 3D क्रिस्टल लैटिस है। हम इसमें देखते हैं कितने क्यूब्स प्रेजेंट हैं। जो मैंने ये रेड पेन से हाईलाइट किया है, ये एक यूनिट सेल है दैट इज़ प्रेजेंट इन दैट 3D लैटिस। सो हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन दिस लैटिस। ओके, दिस इज़ 1 यूनिट सेल, एक यूनिट सेल इसके आगे है 2, एक यहाँ पे है 3 4, ओके, इसके ऊपर 5, इसके ऊपर 6, ओके, इसके ऊपर एक यूनिट सेल हो गया 7, इसके ऊपर हो गया 8। मीन इस क्रिस्टल लैटिस में हमारे पास कितने यूनिट सेल हो गए, 8। ओके, तो मैं कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन बताने के लिए एक कॉर्नर वाला एटम ले लूँगी। ये मैंने एटम ले लिया कॉर्नर वाला एक। तो इसे ध्यान से देखो, ये कॉर्नर वाला एटम कितने क्यूब्स में, कितने यूनिट सेल में शेयर होता है। ये वाला जो होगा एटम इस वाले कॉर्नर से भी शेयर होगा, इस वाले यूनिट सेल में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन आएगा। ओके, जो जैसे ये मैंने पिछले वाला यूनिट सेल ले लिया, इसका ये कॉर्नर वाला एटम होगा, ये आगे वाले क्यूब से भी कनेक्टेड होगा, मीन शेयर होगा। इसके साथ वाला ये क्यूब होगा, इसके साथ ये वाला क्यूब प्रेजेंट है, इसके साथ भी ये एटम शेयर होगा, और जो इसके आगे वाला है उसके साथ भी ये शेयर होगा। ओके, ऐसे ही जैसे ये वाला एक कॉर्नर वाला एटम इन चारों क्यूब्स में शेयर हो गया, वैसे ही ये एक एटम ऊपर वाले 4 क्यूब्स से भी शेयर होगा। तो दिस 1 एटम इज शेयर्ड बिटवीन दिस 8 क्यूब, सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/8। ओके, समझ। ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हम फेस वाला देखेंगे। जैसे ये वाला क्यूब ले लिया मैंने, इसमें हमने फेस पे पॉइंट लगाया, एक एटम प्रेजेंट है फेस पे। जैसे ये मैंने रबड़ ले लिया, इसके मैंने यहाँ पे कोई भी एटम प्रेजेंट है मान लो। अब देखेंगे हमारा ये एटम कितने क्यूब्स में या कितने रबर्स में शेयर होगा। तो अगर मैं एक और रबर लूँ, मान लो ये एक और रबर है, और इसे मैं ऐसे ज्वाइन करूँ, तो जो यहाँ पे एटम प्रेजेंट है इसके सेंटर में, मीन इस फेस के सेंटर में, वो इस वाले रबर के एक रबर के साथ ही शेयर होगा। मीन अगर मैं इसके ऊपर एक रबर रखूँ, जैसे ये मैंने कुछ भी रख दिया, इसे रबर कंसीडर कर लो, तो ये वाला एटम और इस वाले रबर में कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो मीन ये वाला फेस सेंटर वाला एटम सिर्फ एक रबर से शेयर होगा, मीन ये एक एटम इस दोनों रबर में शेयर होगा। ओके, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ 1/2। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर। जो बॉडी सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा उसकी शेयरिंग सिर्फ बॉडी सेंटर में ही रहेगी, मीन एक क्यूब में ही होगी, अदर क्यूब्स में इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो एटम्स पर यूनिट सेल इन्हें बॉडी सेंटर एज 1। ओके, मीन जो बॉडी सेंटर वाला होगा सिर्फ एक यूनिट सेल में ही शेयर होगा, बाकी किसी में शेयर नहीं होगा। ओके, तो अब मैं कैलकुलेट करूँगी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, जो सिंपल क्यूबिक होता है उसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, 8। सो मैंने लिख दिया 8 कॉर्नर एटम। हम इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कॉर्नर एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होती है। मीन जो एक एटम होता है वो 8 के साथ 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। ठीक है, ऊपर वाला हम लिखेंगे किस एटम के बारे में बात करें, मीन्स एक सिंगल एटम के बारे में, नीचे कितने से शेयर होता है।
तो हमने इसे लिख लिया 1/8। इसमें भी हम 1 एटम की बात कर रहे थे, शेयर कितने में होता था 2 क्यूब्स में, तो ये नीचे वाला क्यूब वाला लिख दिया। मीन ऐसे हम याद कर सकते हैं 1/2। ये सिंपली एक यूनिट सेल में प्रेजेंट होता है, मीन एक यूनिट सेल में ही इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो हमने इसे 1 ले लिया। ओके, तो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास 8 कॉर्नर एटम होते हैं इंटू 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसका पर यूनिट सेल में। तो कितने एटम आ गए, 1 एटम पर यूनिट सेल इन ए सिंपल क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट इज इन बॉडी सेंटर। जो हमारे पास बॉडी सेंटर होता है उसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर पे होते हैं। जो कॉर्नर एटम है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8 एटम पर यूनिट सेल। एंड जो बॉडी सेंटर होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 एटम का ही होता है एट द सेंटर। सो इसको कैंसिल करके हमारे पास क्या आ गया 1 एंड दिस 1 इज +1 equals to 2 atom. So in body center 2 atoms present per unit cell. Okay. इन फेस सेंटर पे हमारे 6 फेसेस होते हैं, उनके उन पे एटम प्रेजेंट होते हैं और ऑल कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो 8 कॉर्नर एटम इंटू 1/8 इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ओके, ये 1 आ गया। एंड 6 फेस एटम होते हैं और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है 1/2। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। तो टोटल एटम हो गए 4। देयर आर 4 एटम प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल इन FCC lattice. Okay, now next is relationship between the nearest neighbors and radius of atom and edge of unit cell. Here A is the edge length of the unit cell and this is the atom that are present at the corner of this unit cell having radius r. Okay, जो हम ये कॉर्नर वाले एटम हैं उन्हें ऐसे कंसीडर करते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो दोनों एटम्स ऐसे एक दूसरे के साथ टच हो रहे हैं। ठीक है, मैंने ये ड्रॉ किए हैं। इन दोनों में जो रेडियस है वो r है एंड मैंने बताया जो एज लेंथ है वो a है। तो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो यूनिट सेल की एक एज बनती है, तो उनकी एज लेंथ a हो गई। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसमें हम डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स देखेंगे एंड रेडियस कैलकुलेट करेंगे। इन सिंपल क्यूबिक हमें पता है जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स आर हेयर इक्वल्स टू d। मैंने बताया डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर को हम d से लिखते हैं, इक्वल्स टू a होगा। d डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, ये दोनों नियरेस्ट नेबर्स हैं, उनका डिस्टेंस हमने d मार्क किया। d किसके इक्वल होगा AB के। ओके, एंड AB हेयर इज एज लेंथ एंड एज लेंथ इज इक्वल्स टू A। ओके, नाउ फ्रॉम दिस जब हम इन्हें क्लोज से देखेंगे इस यूनिट सेल को तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड नज़र आएंगे एंड उनका जो एज लेंथ है A है एंड A इक्वल्स टू 2r। ओके, इन दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा इनका यूनिट एज लेंथ। So A equals to r plus r equals to 2r. So r equals to a/2. This is the radius of this atom. Okay. Now in phase center. In phase center में हमने ये फेस वाला एटम मार्क कर रखा है और हमने इसे एक एज ड्रॉ किया। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे A, B and C. Now what is the distance between the nearest neighbors? Okay. हम इसमें ये वाली एज को कंसिडर करेंगे रेडियस और नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, बिकॉज इन फेस सेंटर हम जो फेस वाला एटम है उसे भी इंक्लूड करेंगे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या होगा नियरेस्ट नेबर, ये दोनों नियरेस्ट नेबर है, हम ये दोनों तो नियरेस्ट नेबर नहीं होंगे क्योंकि इनके बीच में एक और एटम प्रेजेंट है, तो ये वाले नियरेस्ट नेबर्स होंगे। तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, इनका डिस्टेंस d होगा एंड d इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस क्या होगा AC का हाफ होगा। ओके, सो टू कैलकुलेट द AC, बिकॉज हेयर वी नो दैट AB एंड BC डिस्टेंस इक्वल्स टू एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल दैट इज इक्वल्स टू A। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हेयर द परपेंडिकुलर इज
this one AB square, base is BC square and hypotenuse is AC square. So equals AB हमारे पास A square है, BC भी हमारे पास A square है, that is equals to 2A square. तो AC कैलकुलेट करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इसका आ गया √2A. सो AC इक्वल टू √2A. ओके, एंड D इक्वल्स टू AC बाई 2. सो AC क्या है हमारे पास √2A बाई 2 आ गया, इसको कैंसिल आउट किया, इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2. सो 1√2 से 1√2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया A बाई √2. सो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स क्या आ गया A बाई √2. एंड वी ऑल्सो नो दैट D इक्वल्स टू 2R. मीन जो ये डिस्टेंस होगा वो इनके दोनों के रेडियस के सम के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2R. सो R इक्वल्स टू D बाई 2 एंड D कितना है A बाई √2. A बाई √2 आ गया एंड ये 2 पहले ही था हमारे पास, सो आ गया A बाई 2√2. ओके, सो नेक्स्ट वन इज बॉडी सेंटर. इन बॉडी सेंटर एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर. सो नियरेस्ट नेबर्स कैलकुलेट करने के लिए हम सेंटर वाले एटम को भी इंक्लूड करेंगे. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, यहाँ पे नियरेस्ट नेबर हो गया ये बॉडी सेंटर वाला एटम एंड दिस कॉर्नर वाला एटम. ओके, सो डिस्टेंस इक्वल क्या आ गया हमारे पास D इक्वल्स टू AD का हाफ, AD बाई 2. ओके, हमारे पास ये हमने ऊपर वाले में ये वाला सॉरी क्या है ट्रायंगल लिया था, तो इस ट्रायंगल से हमने कैलकुलेट किया था AC दैट इक्वल्स टू √2A. सो सिमिलरली पहले हमने ये कैलकुलेट किया AC, क्या आ गया √2A. अब हमें क्या चाहिए AD. सो हमने ये ट्रायंगल लिया ACD. ओके, तो इस ट्रायंगल में भी हम सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए वाला हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. हमारे पास AC की वैल्यू आ गई √2A एंड DC हमारे पास क्या है एज लेंथ दैट इज इक्वल्स टू A. सो ऐसे पाइथागोरस लगा के हमने क्या निकाली AD स्क्वायर की वैल्यू दैट इज़ 3A स्क्वायर. टू कैलकुलेट AD हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो इसकी वैल्यू आ गई √3A एंड D इक्वल्स टू AD बाई 2. सो AD √3 आ गया, 3A बाई 2 क्या हमारे पास डिस्टेंस इक्वल्स टू √3 बाई 2. ओके, नाउ रेडियस हमारे पास क्या होता है D बाई 2. इन दोनों के डिस्टेंस का हाफ हमारे पास रेडियस होता है. डिस्टेंस हमारे पास क्या था √3A बाई 2. सो हमारे पास रेडियस क्या आ गया, यहाँ पे हमने D की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास R आ गया √3A बाई 4. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू एंड कीप लर्निंग.